everyone. Welcome to this student panel discussion that's happening as part of Living Lightly. As you all know, Living Lightly is a festival entirely on pastoralism. And the film festival is one part of a larger festival. And there's a Desi Oon exhibition which is happening on indigenous wool, which is on also till the 25th. That's also online. You can find it on Instagram, Facebook, social media. Um, so, as the organizing team of the film festival, we were very pleasantly surprised to see that there's such an overwhelming number of films on pastoralism, and that so many of them have actually been made by students, where in this day and age, one would think that students are probably not interested in a topic like this. So then we thought we have to put together a student panel where we talk to all of them about their experiences shooting in these areas, interacting with communities, and so on. So, yeah, and we also thought it would be a good chance for everyone to hear these stories from the field as experienced by filmmakers. So we have students from 4 different institutes with us today. There is Srishti Manipal Institute, there's Savannah College of Art and Design, Green Hub, which is a video fellowship, film and video fellowship in the Northeast. And we have the Indian School of Design and Innovation, which is Parsons in Bombay. And I would like to now pass it on to all of our panelists to do a quick introduction about themselves, their practice, and then we can start with the discussion. So, yeah. Hi, my name is Janvi. Thank you for coming today. I graduated from Srishti in 2014, and I am a filmmaker. I worked on documentaries that have to do with pastoralism, with internally displaced people, and wildlife. Hi everyone, I'm Sonakshi. I graduated from Indian School of Design and Innovation last year, and I'm a communication designer, and I live in Mumbai. Hi guys, Vivek here. Even I graduated with Janvi in 2014 और ग्रेजुएट होने के समय तो मैंने फिक्शन बनाया था, लेकिन उसके बाद से पिछले 5-6 सालों से डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाते आ रहा हूँ और मेरा भी पैस्टोरलिज्म के अराउंड भले ही वो हिमाचल हो या गुजरात हो या राजस्थान, हाँ, तो मैं भी यहाँ वहाँ धक्के खाते खाते फिल्में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और चीज़ों को अभी भी समझने की कोशिश कर रहा हूँ। बस मानस। हेलो एवरीवन, आई एम मानस और मैं असम से हूँ और मैं ग्रीन हब का एक्स फेलो हूँ 2016 और 17 बैच, और अभी ग्रीन हब में ही एज एन एडिटर काम कर रहा हूँ। और ये ग्रीन हब जो है ये एक वीडियो डॉक्यूमेंटेशन सेंटर है। ये मेनली मतलब 20 फेलोज को फेलोशिप देते हैं 1 साल के लिए, तो उसी चीज में हम लोगों ने फेलोशिप किया था, तो अभी मैं इधर ही काम कर रहा हूँ एज एन एडिटर। I can go next. Hi, I'm Ashwin. I graduated from Srishti 2014. I graduated from SCAD last month, and I'm very interested in knowing how the environment and ethnography are interdependent. My name's Harsimran, and I also graduated from Srishti in 2016. That's where I stumbled upon documentary films, and I started enjoying it. I got a chance to work on several environmental documentaries while at Srishti and after, and currently I'm pursuing a master's in cinematography from FAMU in Prague. I'm Akash Doshi. I graduated from Srishti with Vivek and Janvi in 2014. I was introduced to documentary filmmaking through Srishti Films, and I worked on it briefly after that for a year or two. Currently, I'm doing design and animation work. We have one more panelist, Dava Sangpo Bhutia from Green Hub, but he's also in bad network area. So Sangpo, if you're here, can you do a quick introduction? Sangpo.
Okay, we'll wait for his connection to get better. So, like I said at the beginning of the discussion, that we were pleasantly surprised to see how many films there are on pastoralism, and so many of them made by students. And we want to know about the filmmakers' experiences. So, I remember as a film student, I was always conflicted between a fiction and documentary. So my first question to the the panelists is that what made you pick documentary films, and what is so unique about the practice of making documentaries? I can start. I think काफी लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने फिक्शन और नॉन फिक्शन दोनों किया है, तो दूसरे लोग भी इस डिफरेंस के बारे में बात कर सकते हैं. पर मेरे लिए सबसे बड़ी चीज ये थी कि इट्स अ लॉट ऑफ, यू कैन पुट एज मच प्लानिंग इनटू इट एज यू वुड लाइक, पर जब आप फील्ड पे जाते हो तो वो सब गुम हो जाता है. इट्स यू हैव टू बी वेरी रिसोर्सफुल, यू हैव टू बी वेरी स्क्रैपी. हम हमेशा you're thinking on your feet, you know, budget के मतलब कुछ भी नहीं होता हमारे पास. बहुत काफी बारी हम उनके साथ ही रह रहे होते हैं instead of staying at a hotel or, you know, somewhere else. And so it's a very big process on like constantly thinking on your feet all the time. आपको shot जो आप ड्रीम करके सोच के आ रहे थे सिटी से, वो आपको नहीं मिलेगा. जिस तरह के इंटरव्यूज आपको चाहिए थे वो आपको नहीं मिलेंगे. So everything kind of changes very quickly on scene. And you have to adapt to that, and it is both extremely stressful and very exciting. Vivek nod कर रहा है, तो मैं विवेक को पास कर देती हूँ माइक to talk about this more. हाँ, तो उसी चीज को ऐड करूंगा मैं एक लाइन खाली के, जिस तरीके से हम लोग जो शॉट्स प्लान करते हैं वो नहीं होता है, और कई बार जो चीजें हमने प्लान नहीं की होती उतनी सुंदर सुंदर चीजें मिल जाती है जो कितनी भी प्लानिंग कर लो वो मिल ही नहीं सकती है, और जो भी वहां पे रहकर, तो उसका वही फायदा है. और दूसरा वही है कि जब जो अननोन में रहना होता है, उसी में जहाँ चिंता होती है और एक्साइटमेंट भी होती है, वो बहुत बढ़िया स्पेस है मेरे लिए भी पर्सनली, कि मुझे हर एक चीज मालूम है क्या होने वाला है, कंट्रोल पूरा मेरे हाथ में, उतना उसमें उतना मजा नहीं है क्योंकि कंट्रोल कहीं ना कहीं हाथ में है. तो यहाँ पर उतना कंट्रोल नहीं होता है, तो उसके साथ आप किस तरीके से जूझ कर, होता है ना, कुछ चीजें हासिल हो जाती है, कुछ नहीं होती, तो उसमें अप्स एंड डाउन होते रहते हैं. ज्यादातर मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगर शुरुआती दिनों में फ्रस्ट्रेशन होती है, सिर्फ शाम को आके फीलिंग होती है कि अरे यार जो सोचा था नहीं हुआ, वो इंटरव्यू लेना था या उनसे बात करनी थी या वो वाला एक विजुअल चाहिए था, वो नहीं हुआ, अब क्या करें, अरे फिल्म बनेगी कि नहीं बनेगी. हमेशा उस एक हर फिल्म के अंदर कहीं ना कहीं उस शुरुआत में आता है कि अरे यार फिल्म तो बनने नहीं वाली, अब क्या करें. और उसके बाद में जब वहां जो लो के बाद जब अप जाते हैं, जब समझ में आ जाता है या फिगर आउट हो जाता है किसी भी तरीके से, वो वाली जो खुशी है, आई थिंक मेरे लिए वो नॉन फिक्शन या डॉक्यूमेंट्री में काफी एक्साइटमेंट भरी रही है. कोई भी शुरू हो सकता है. I would like to add on to that because I have a rather funny story from my film. So my film had a lot of leopard footage, and it is extremely, you have to be extremely lucky in order to see or to film leopards. पर जब मैं स्क्रिप्ट बना रहा था, तब I had written all sorts of things. Yeah, I'll get a hunting scene, I'll get this scene, that scene. कुछ हुआ नहीं. But till the second last day, I think the day before you came, Vivek, we got a nice mating sequence of the leopards. So just like Janvi and Vivek said, anything is possible. And if you don't get what you're thinking you'll get something much, much better. That's a thrill that I also find about documentaries, is that every day you're rethinking of your script, and there, jahan se you've started to where you end, you might have a very different film altogether. And every day, like I started shooting another film, and 2 days into the shooting, my lead characters disappeared. So then I had to rethink and make another story. And then when I thought that I was on the right track and I got it, that's when another twist happened. So that's something that I find extremely thrilling about this. आगे बढ़ते हुए इसी से रिलेटेड एक और चीज है कि जब जिस टाइप के लैंडस्केप्स में हम कई बार जाते हैं, दे आर वेरी रगेड लैंडस्केप्स, मतलब काफी डिफिकल्ट होता है वहां पे रहना, शूट करना, और ज्यादातर हम लोग
सिटी से हैं, तो आप लोगों के क्या एक्सपीरियंसेस हैं इसके अराउंड, यू नो, आई लाइक हाउ डू यू डील विद physically difficult terrains? So Akash, Manas, any of you want? Can I I'd start? like to. Oh, Okay, please. Sonakshi. go ahead. Okay, so when I made my film based on the Gaddis in Himachal, I remember first of all that there was this airstrike on the day that I was supposed to travel, and there was the Balakot airstrike after the Pulwama attack. So it was really scary to actually go travel on that day. But like we postponed our trip by a day, and my mother was there with me. So she really supported me throughout that journey. And once we reached there, once we finally got to the village we had to go to, we realized that I wanted to go all the way up till Bharmor in Himachal. But because of landslides in that area, we couldn't actually go all the way up till there. And I was really tense because that would have been my main base to know more about the Gaddis and to actually see the culture and the people at Bharmor. But once you're there, you just have to like adapt to whatever is coming to you. So since I couldn't travel to Bharmor, we had to figure out other places that I could go to and actually visit. And like these were decisions that I had to take really quick because I was there for a limited time. But nevertheless, Ashwin mentioned, that we always get something or the other out of that experience, and it's not always what we plan and how we go. And especially in the hills, because it's like everything's dependent on the weather conditions. There's like we have to be prepped for like absolutely anything. Yeah. मेरा एक्चुअली फिल्मिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा उल्टा है. लोग जनरली मतलब सिटीज से विलेजेस में जाते हैं और मैक्सिमम लोगों का वैसा ही होता है, लेकिन मैं विलेज से सिटी में गया हूँ. ठीक है, तो और मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ, मैं असम से बिलोंग करता हूँ. एक तिनसुकिया करके एक डिस्ट्रिक्ट है असम का, तो वो प्लेन है मेनली. ठीक है, और हम लोगों ने जहाँ शूट किया था याक हर्डर करके, तो वो जिमिथांग करके एक जगह है, तवांग से ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर है. और वहां से भी जिमिथांग से भी ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर होगा हम लोगों ने जहाँ शूट किया था. और वो पूरा हिली एरिया है. और उस टाइम तक मेरा मतलब हिल का एक्सपीरियंस कुछ नहीं था. उस टाइम पहली बार मैं मतलब इतने हाई ऑल्टीट्यूड में शूट किया था मैंने. और याक्स का भी, हम लोगों का फिल्म मेनली याक्स के ऊपर था, तो याक्स का भी मतलब पहली बार ही देखा था, तो क्या मतलब क्या दिखेगा, कैसा दिखेगा, वो कुछ पता नहीं था. और वहां पे जाके मतलब पहले तो वहां पे 2 ही घर थे जहाँ जिस हिल में हम लोग गए थे. ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटे का ट्रैक था. तो वहां तक चढ़ के मतलब मेरा तो पूरा मतलब हालत ही खराब हो गया था. तो क्योंकि मतलब हिल का एक्सपीरियंस नहीं था, और चलने का, प्लेन्स में चलना और हिल्स में चलना तो बहुत ही अलग है. तो और वहां पे जाके सिर्फ 2 ही घर थे. 2 घरों में छोटे छोटे बच्चे भी मतलब मुझसे ज्यादा स्पीड में वहां पे चलते थे. तो वैसा टाइप का मतलब एक्सपीरियंस होता है. और वो अच्छा था. एक मतलब एकदम डिफरेंट वो था, एक डिफरेंट मतलब लैंडस्केप था. और मतलब उसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग का वही एक मजा है कि आपको कब क्या मिल जाए, प्लानिंग के अकॉर्डिंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो मतलब आप श्योर नहीं हो सकते. ठीक है, तो वही है. हाँ, तो I think I had a similar experience to what Sonakshi had, where when I went during my recce, it was difficult. It was very easy for me to access the regions that I did. And I made my documentary in Kutch. It was on the Kharai camels. So the Kharai camels, they swim in the sea and they graze in the mangroves close to the coast. So when I went for my recce, it was much easier to get access to all these regions since I was going on my own. But when I went during my documentary shoot, we had a small crew. And when I tried accessing all these again, I was not allowed in because it is pretty close to the Pakistan border. So you need permission to get inside because you have to cross the border BSF posts to get to those villages, which I did not realize during my recce. So my 2-week shoot got cut down to just like 4 days because
most of the time just went into getting permissions. And even during those 4 days, I got access to get on a boat and go to the islands for like 2 days. So my most of my film was shot during those 2 days and 3 days. So yeah, that was a pretty interesting experience. That's actually really interesting. So my next question is कि यहाँ पे I think सभी ने कहा है कि you know there's this element of the unexpected when you go somewhere and मतलब आपको पता नहीं है कि आपको क्या क्या मिल सकता है. तो उसी तरीके से जब लोगों से बात करते हैं तो उसमें भी एक unexpected element रहता है कि you don't know what all information you're going to receive. Like you may do your research, आप अपना preparation करके जाते हो, कई बार लोग script भी लेके जाते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है कि आपके पास क्या क्या information आने वाली है. तो वहां पे जाके एक तरीके से हमेशा पूरा नजरिया बदल जाता है. तो how do you make a story out of all the information that you know suddenly get or are bombarded with at times too? So yeah. मैं बोलने वाली थी मेरे एक्सपीरियंस में 2 चीजें हैं इसमें. एक तो यू हैव टू लाइक यू सेड बहुत लोग स्क्रिप्ट लेके जाते हैं, रिसर्च करके जाते हैं, तो कुछ आइडिया तो होता है कि क्या पूछना है लोगों से, क्या इंटरव्यू चाहिए, क्या साउंड बाइट्स हमको चाहिए. तो ट्राइंग टू कीप दोज इंटरव्यूज इन दैट स्पेस. कभी कभी काफी लोग यू नो डिविएट हो जाते हैं, कुछ अलग बात करने लगते हैं, तो ट्राई एंड कीप देम इन दैट स्पेस, बट एट द सेम टाइम लोगों को डिविएट करने दो ताकि कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिले, कुछ चेंज हो जाए, कुछ समथिंग यू डिडंट नो बिफोर यू हैड. तो दोनों को थोड़ा बैलेंस करना पड़ता है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो तुम चाहते हो वो भी चाहिए, पर दूसरा कुछ यू आल्सो वांट टू नो व्हाट एल्स देयर इज दैट दे वांट टू स्पीक अबाउट. बट द अदर एस्पेक्ट दैट आई वांट टू ब्रिंग अप इन दिस इज आल्सो कि औरतों के लिए मेरे एक्सपीरियंस में ये और भी मुश्किल होता है, बिकॉज हम जब जाते हैं लोगों से, आदमियों से बात करते हैं, तो वो या तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि यू नो ये बहुत शर्माते हैं या बात नहीं करना चाहते हमसे, ओपनली बात नहीं कर पाते, या तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम मतलब हमको सीरियसली नहीं लेते, यू नो लाइक. सो we've experienced both those things. Not saying that that's all there is in the, we meet amazing people all the time when we are out in the field, but those things also happen. So that's another hurdle that the women in this panel can also speak to, कि वो भी is something that you have to overcome. जानवी, मेरे पास एक सवाल है. हाँ जी, तो ये जो एक्सपीरियंस रहा है ये क्या अलग रहा है? अभी तुमने भी बाकी फिल्में भी बनाई है, सिर्फ पेस्टलिस्ट के साथ में नहीं, लेकिन तो क्या वैसे कुछ फर्क रहा है किसी किस्म का कि जब हम जो भी गुजरात में जब काम कर रहे थे तुम, हाँ, वहाँ अलग का मिला या कहीं और अलग, या बाकी नॉर्मल जगहों पे गांव में अलग? हाँ, आई थिंक हर जगह हम जाते हैं तो स्लाइटली डिफरेंट होता है. जैसे कि जब हम हरियाणा में गए थे तो और यू नो वी वर मेकिंग अ फिल्म अबाउट फीमेल एम्पावरमेंट, तो थोड़ा हमको ऐसे बिहेव करते थे जैसे कि हमसे बात नहीं करना चाहते, बिकॉज दे न्यू कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू और उनका पॉइंट ऑफ व्यू कभी मैच नहीं होगा, तो वो थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहते थे. बट पैस्टोरलिस्ट के साथ जब हम मालधारियों के साथ कच्छ में काम कर रहे थे तो वो कभी इशू नहीं था. इट वाज मोर जस्ट कि यू नो या तो उन्होंने बात नहीं करी थी पहले इतनी खुल के एन ऑल फीमेल क्रू के साथ, या यू नो उनको नहीं पता था क्या बोल सकते हैं क्या नहीं बोल सकते. और औरतों से वहां पे थोड़ा और भी मुश्किल होता था हमको बात करने को, क्योंकि हमको क्लियर इंस्ट्रक्शंस थे कि उनको आप फिल्म नहीं कर सकते. तो एक्चुअली मैं सिमरन को पूछने वाली थी अभी, क्योंकि उनकी फिल्म में उन्होंने बहुत क्रिएटिवली फिल्म की बात करी थी मालधारी कम्युनिटी की औरतों से. सो आई विल पास द माइक ऑन टू सिमरन. This is definitely a struggle that I felt as well. Kutch mein itna zyada nahi. I didn't feel unsafe there. I felt that I could go and talk to anybody that I wanted to. But for me, one of the hurdles was, that was the first time I'd gone into the field, was main apna pura research karke aayi thi. I'd made a lot of notes about what the situation is. And day one in the field, I realized that I can't hold on to my book and I have to let go of it. And that's when I realized that you have to ask questions which are relevant to what is happening there. And sometimes they're comfortable, sometimes they're uncomfortable. So that is something that I learned, that you can't be a researcher there. You have to be a curious person at the end of it, who just wants to understand the situation. Coming to the women's scenario,
like Janvi said, we couldn't talk to the women in Kutch, in the Bani area. So they were really, really scared. Unko dar lag raha tha to even introduce us to the women. So for the first 3 days, I could not talk to a female. The only female that I'd spoken to was a 10-year-old kid. And so I was curious, ki hai kya? What are these women going to say? Jo wo kuch chupana cha rahe hai, ya something of that sort. And then we were like, let's think of it strategically. So then we approached the women from a distance. Then we smiled, they smiled. Eventually, they let us into their homes on the condition that they dress us up. So me and another colleague, they decided to make us wear their jewelry. They made us wear their scarves and everything. So it was more like a playful thing. We told them that we won't shoot. And then after half an hour, 45 minutes of it, we asked them permission. Can we shoot your jewelry? We won't shoot the faces, but can we shoot your hands holding the necklaces that you've made and the embroidery that you've done? Because that's an integral part of the culture that we wanted to document in the film. But throughout, this entire interaction was very monitored. There were other men also who were present. They never left us alone with the women. So that was my experience. मुझको सत्या वो तुम्हारा पहले वाला पॉइंट याद आ रहा है वापस से कि जो डिफिकल्ट टेरेन या होता ना उसकी जो बात कर रहे थे मेरे भी एक्सपीरियंस में ये रहा है कि अब बाकी जगहों के साथ मैं अगर फिल्में बना रहा हूँ या पैस्टलिस्ट के साथ हो तो जो डिफिकल्ट टेरेन है, एक्सट्रीम वेदर्स हो, एक्सट्रीम सिनेरियोज हो, वो सारे के सारे वैसी जगहों पे किसी भी तरीके से रहते हैं और अडेप्ट कर लेते हैं और बहुत मतलब उतना आसान नहीं है उनके साथ में रहकर फिल्म बनाना भी आसान नहीं, क्योंकि जब साथ में रह रहे हो तब पता चल रहा है कि भाई किस पहाड़ की चोटी में किस तरीके से रह रहे हैं, रात को इतने छोटे से पत्थरों के बीच में जो उनका होता है वहां पे जहाँ पे रात को सोते हैं, बारिश आ गई, क्या हो गया। तो जब उनके साथ जब शूट किया तो काफी कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि बाकी जगहों पे फिर भी यू हैव एन ऑप्शन दैट यू कैन स्टे विद देम or you cannot stay with them. But if you are working with pastoralists, you have to stay with them. You have to walk from morning till night with them, जहां पर भी अपने ऊँटों को चराने जा रहे हैं या फिर रात को कहां पर रह रहे, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है तुम अगर वहां पहुंच जाओगे लेकिन तुम एक दिन में वापस आ भी नहीं सकते हो, ऐसी जगहों पर भी होता है। तो जो भी एक्सट्रीम सिनेरियो और होता है ना वो उसका एक जो भी है कनेक्शन मुझे काफी यहाँ इनके साथ स्ट्रॉन्ग लगा है। एक अच्छी चीज उसी के बीच में, कहीं पर भी जाओ दूध दही मिलने की कोई चिंता नहीं है। शूट करने के लिए जा रहे हैं, हमको लग रहा है चलो वहां पे उनके साथ शूट करते हैं, अगर होते ना पहचानते भी नहीं हो और इतने वेलकमिंग होते हैं, एंट्री मार दी कि सबसे पहले बाकी बात बाद में करेंगे, चलो चाय बनाते हैं, वहीं पे दूध निकालेंगे, वहीं पे हमको चाय पिलाएंगे, वहीं पे गप्पे मारेंगे और उसके बाद चलो अब शूट करते हैं, या वही जो गप्पा मारना है वही शूट का हिस्सा होता है। और ये हर जगह कॉमन रहा है, हिमाचल के गद्दियों के साथ भी या फिर मालधारियों के साथ भी। विवेक का पॉइंट आगे लेते हुए जैसे विवेक बोल रहा था कि आप उनके साथ रहना पड़ता है, उनके साथ सोना पड़ता है, सारा दिन उनके साथ, सुबह से रात तक उनके साथ चल रहे हैं हम, तो यू टेंड टू गेट अटैच्ड। जो आप फुटेज शूट कर रहे हो, आपकी स्टोरी जो भी है, जो भी आप उनके साथ कर रहे हो, बहुत अटैच हो जाते हैं। तो मैं ये क्वेश्चन एक्चुअली मानस को डायरेक्ट करूंगी, सॉरी मानस आपकी तरफ ला रही हूँ मैं, लेकिन क्योंकि आप एक एडिटर हैं, इतना सब आप जब शूट करके लाते हैं और इतना प्यार है आपको खुद की, इतना मुश्किल काम करा है आपने, आप कैसे डिसाइड करते हैं अब इसमें से क्या रखना है क्या नहीं रखना है? क्योंकि कभी कभी एक कोई एनजीओ होता है जिसके लिए आप फिल्म बना रहे हैं, कुछ मैंडेट आपको पहले से दिया गया है, ब्रीफ दिया गया है कि ये फिल्म बनानी है, फिर आप अब आपके दोस्त बन गए हैं फील्ड में, तो उनकी भी फुटेज आपको रखनी है, तो वो बैलेंस कैसे लाते हैं आप आपके एडिटिंग प्रोसेस में? तो एक्चुअली मैं अभी से 5-6 साल पहले से कुछ शूट कर रहा था, तो उसके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ। तो एक हमारे यहाँ पे भी मतलब पेस्टोरियल्स हैं, तो उनको मतलब यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में खूटी बोलते हैं, ठीक है। मेनली नेपाली कम्युनिटी के लोग होते हैं और वो बफेलोस और काउस वगैरह मतलब नदी के साइड में चौड़ एरिया जो होता है ना, तो उस एरिया में वो लोग पालते हैं और दूध का वो ये करते हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 6 साल से शायद उन लोगों को शूट कर रहा हूँ, 6 या 7 साल से, लेकिन अभी तक मतलब कुछ बना नहीं है मेरा, क्योंकि मतलब इतना ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हूँ मैं उन लोगों से। जब भी एडिट करने के लिए बैठता हूँ तो
क्या मतलब क्या रखूं क्या ना रखूं, वैसा करके मतलब एक धर्म संकट जैसा हो जाता है। ठीक है, तो वो तो हो गया मतलब जो इमोशनल अटैचमेंट आता है। तो और बाकी हम लोग का जो फिल्म था याक हर्डर्स के ऊपर, वो हम लोगों ने मतलब देखिए उन लोगों के साथ है एक अटैचमेंट तो आ जाता है, और हम लोगों ने वो फिल्म शायद एक दिन में ही शूट किया था। तो उतना ज्यादा मतलब अटैच्ड हम लोग उस फिल्म में नहीं हुए थे जितना मैं मतलब अपने वहां के लोगों से अभी तक हूँ। तो इसीलिए क्या रखूं क्या ना रखूं, वो तो मतलब किसी अगर दूसरे कोई किसी से प्रोजेक्ट लेके या वैसे करके अगर शूट करना है एडिट करना है तो वो तो हो जाता है, मतलब वो उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन वही है मतलब एग्जैक्टली मैं भी नहीं बता सकता हूँ कि क्या रखूं क्या ना रखूं, जो मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड जिस जिस सब्जेक्ट से हूँ। तो मतलब हाँ वही है, मतलब अगर एक वर्ड में बोलूं तो मुझे अच्छे से पता नहीं इस चीज को, कि क्या रखूं क्या ना रखूं, जो मतलब बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ जिस सब्जेक्ट से बहुत ज्यादा अटैच्ड हूँ। तो हाँ, तो बाकी दूसरों से मतलब जो दूसरों के लिए फिल्म बनते हैं वो तो हो जाता है, वो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन हाँ, किसी और के पास है इसका उपाय सोनाक्षी? अगर किसी के पास उपाय है तो प्लीज मेरा भी हेल्प हो जाएगा। मानस को हेल्प करते उसके 6 साल से बनी हुई फिल्म को खत्म करने में। सोनाक्षी, you're on mute. इसका उपाय तो नहीं है, but I also remember that, like, building on the points that we just discussed, that when I was interacting with the Gaddis, they were very open and very welcoming, and they had a lot to share, a lot to talk about. They even invited me to a wedding, the first trip, and I was like, this is not going to happen, because at that time I didn't know ki mera film banne wala hai, ya I'm going to come back to this place. But it's so even I forgot about that, and it so happened that the next time that I went, I just knew कि ये विलेज के लास्ट हाउस में एक वेडिंग होने वाला है, एंड माय लाइक mentor or guide there who would help me interact with the villagers told me कि like there's a wedding, you can go, you might get some content for your film और ये सब. So I was like, this is not very relevant to my, like, you know, my subject, but I would love to see a Gaddi wedding. So I went, and it happened to be that same wedding of that lady who had invited me for her brother's wedding. So it was very interesting, and I really feel ki in terms of what to keep and what not to keep, I feel like all these things really add to your film, and in some way or the other, it really like it just shows more about the people. So even I had a lot of like like editing my film was like the toughest part for me, so, because there was such nice things that I wanted to like bring out through my film, like even capturing them doing their woolen activities and like singing their music, the wedding, even though they weren't very relevant, I just didn't know how to remove it out of the film, and I really felt like that was adding to who they really are. So I don't have a solution to that as well. तो ये धर्म संकट से मुझे एक और बात आई, एंड दिस क्वेश्चन इज नाउ फॉर अश्विन, कि ये जो धर्म संकट होता है वो it's often to also to do with how do you come up with a story or a path which all the parties that you're shooting are okay with, you know, like एक जिससे सब agree कर सके. And I think ये सवाल अश्विन के लिए इसलिए क्योंकि उनके फिल्म में ऐसे कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को बैलेंस करके उन्होंने बनाया है. तो या अश्विन, ओवर टू यू. All right. I'm of the opinion कि जो डॉक्यूमेंट्री बनती है वो 3 बार बनती है. पहली प्री प्रोडक्शन में बनती है, फिर प्रोडक्शन में बनती है, फाइनली पोस्ट प्रोडक्शन में जो स्क्रीन पे आप देखते हैं वो बनती है. Regarding the conflicts, it was tricky because if you see both of the characters are on the same team, if I may, so both of them agreed. There wasn't a conflict between two characters. It was more about humanity versus the society, man versus society जो बोलते हैं हम लोग.
So it was fairly easy for me to convince the characters कि मुझे ये film में डालना है, and they were pretty much okay with saying it aloud and even having it on film. Yeah, that's pretty much how I did it. अश्विन, तुम्हारे फिल्म का नाम बता देना अगर किसी ने यहाँ पे नहीं देखी हो तो वो। हाँ, मेरे फिल्म का नाम है रबाड़ी द पीपल ऑफ द लेपर्ड, और वो पीपल ऑफ द लेपर्ड क्यों है वो आप जान सकते हैं फिल्म देख के। Akash, would you like to share something about this? Yeah, I think in my experience, when it comes to opinions, I think when you interview people for your film, since they come from different backgrounds and they have different opinions, they will share all of that with you. So I think when working with the Maldhari community, they had their own specific issues with the bunny, which they shared with us. If he spoke to a forest officer, he had his own opinion about it. So I think when you come to editing the film, it's very difficult to not pick a side because it becomes very clear because everyone is very opinionated in that sense. And in my film, I tried keeping it balanced in that sense so that I'm not leaning on either side. So trying to keep the message that the camels are the Kharai camels are the only kind of camels that exist there. But yeah, so like I think editing becomes a little hard when you try picking a side between the two. So I think in my experience, it becomes that's the conflict that I face at that stage. And what if you have a side that you agree with or have picked, then how do you go about it? Then I think it's kind of obvious that I do lean towards a certain direction because it's always on the side of the communities more than the organizations, I think. So it is kind of clear that you do tend to lean on one side, but then I think it's a very complex scenarios that we go into, and it's very difficult because we come from a different background and we are thrown into this environment. And I think through Shrishti Films, I got educated on these topics a lot more regarding like Forest Rights Act and other acts as such. So I'm also like quite new to those subjects, so I tend to not have an opinion which is very strong about it because I'm also trying to learn about it. So I think through my films also I try showcasing that more rather than saying that this is the community and this is what they think about the world or something like that. अगला सवाल आपके सामने मैं पेश करना चाहूँगा। मुझको अब ये पूछना था कि चलो अब हम इमर्शन की बात कर रहे हैं, वहाँ रहने की बात कर रहे हैं, डिफिकल्ट टेरेन की बात कर रहे हैं, तो जब डिफिकल्ट टेरेन और इमर्शन में अगर मिक्स होगा तो आई एम श्योर किसी के पास कोई ना कोई किस्सा होगा जो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जहाँ पे होता ना कोई सिचुएशन में आप फंस गए हो, जैसे सोनाक्षी ने शुरुआत में एक थोड़ा सा बताया था उस किस्म का। कोई अपना किस्सा बता सकता है कि शायद तुम वहां गए शूट करने, वहां फंस गए, या अपना इक्विपमेंट के साथ कुछ हो गया, क्योंकि अगर हार्श कंडीशन है और तुम इमर्स कर रहे हो तो तुम फटाफट होटल भाग के आ जाओ, गाड़ी पकड़ के और चार्ज कर लो और ये कर लो, वो सारी चीजें नहीं होने वाली है। तो उस सिचुएशन में क्या कोई किसी के मन में आ रही है कोई बात? मानस शायद बोल सकता है क्योंकि मानस के लिए बड़ा स्विच रहा है, तो तुम शायद बता सकते हो कुछ। अपने यहाँ का एक एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। ये ऑलमोस्ट 3-3.5 साल पहले का था, जब ग्रीन हब का फेलोशिप चल रहा था। हमारे वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, दिब्रू-सैखोवा करके, दिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क। और ये मतलब जो खूंटी वगैरह है वो दिब्रू-सैखोवा के साइड एरियाज में है, मतलब बिल्कुल बॉर्डर में है। तो हम लोग एक बार, मैं अकेले गया था, गए करने के लिए उन लोगों के साथ। तो मेरे पास ना टेंट था, ना स्लीपिंग बैग था, ना मतलब कुछ भी नहीं था। तो ऐसा हो गया कि हम लोग जंगल में गए। उसके बाद जब लौट रहे थे तो जिस रास्ते से हम लोग गए थे उस रास्ते में लौटने के टाइम में हाथी का एक पूरा हर्ड आ गया था।
तो ये लोग तो मतलब बफेलोज वगैरह तो क्रॉस कर गए, तो वहां पे एक सिंगल हाथी था, तो हम लोग क्रॉस नहीं कर पाए वहां पे। तो हम लोगों ने क्या, मेरे साथ खुटी के और 2 लोग थे, तो हम लोगों ने मतलब जैसे तैसे नदी के साइड में एक पेड़ होता है छोटा सा, मतलब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं तो मुझे पता नहीं है, लोकल लैंग्वेज में लेकिन झाओबन बोलते हैं। तो नदी के साइड में, असम में आप लोगों को पूरा दिख जाएगा अगर कोई असम आया है तो नदी के साइड में मतलब बहुत सारे होते हैं वो। तो हम लोगों ने क्या किया, एक मतलब उधर ही नदी के साइड में ही गड्ढा करके झाव बिछा के ऊपर झाव रख के, मतलब वैसे ही करके ही रात को सो गए थे। और सुबह सुबह जब उठे, हम लोगों के पास टॉर्च नहीं था, कुछ नहीं था, लाइट वगैरह कुछ नहीं था। सुबह उठ के जब देखे तो नदी का साइड जो था उसमें मतलब हम लोगों को लेपर्ड के पग मार्क दिखे, वाइल्ड बफेलोज के पग मार्क दिखे, और मतलब हाथी का पग मार्क थोड़ा आगे दिखा था। सुबह वो जब दिखा हम लोगों को नजारा, हम लोगों का मतलब हालत खराब हो गया था। ठीक है, तो हालत खराब हो गया था। उसके बाद से मतलब प्रिकॉशन पहले लेना है, और वैसे सिचुएशन में जाने से मतलब कैसे क्या करना है, वो भी एक एक्सपीरियंस बहुत ही मतलब अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि मतलब आगे वो काम आ गया। तो वैसा टाइप का चीजें होता है। तो कुछ फुटेज भी मिली उससे बचने के बाद? और फुटेज, हाँ, उस पहले दिन का फुटेज मिला था, लेकिन उस दिन जब हम लोगों को पगमार्क वगैरह दिखा और हाथी तो वहां पे था ही, तो फुटेज छोड़िए, हम लोग मतलब भागने लगे वहां से। जब भागो, फुटेज छोड़ो, भागो जान बचा के। तो हाँ, तो उसके बाद से मतलब हम लोग को मतलब मुझे पर्सनली एक चीज का एहसास हुआ कि मतलब कहीं पे भी जाने से प्रिकॉशंस तो लेना ही है। और फुटेज मतलब बाद में वो सिचुएशन जो था, बाद में अभी मतलब पछताता हूँ कि भाई फुटेज मैंने क्यों नहीं लिया सुबह। मेरा तो अगला सवाल वही था कि अगर अभी आने के बाद में अभी रिग्रेट होता है कि नहीं होता है? बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है। तो एक एक्सपीरियंस वो भी था, मतलब फ्यूचर के लिए काम आ गया। तो अगली बार जब जान बचाओगे तब कैमरा के साथ जान हाँ, बचाओ। एकदम कैमरा रोल करके जान बचाना है। कोई और भी कुछ शेयर करना चाहेगा? क्योंकि आई थिंक ये कॉमन थ्रेड होगी हम सबके बीच में। कोई और भी कहीं तो फंसा होगा और किस तरीके से फंसने के बाद उससे बाहर निकला, उस खड्डे से बाहर निकला। So sorry, मेरा नेटवर्क बहुत खराब था, so I couldn't join the discussion on time. No problem. We are glad you're here Hello. now. Okay, thank you. Yeah, I'm Dawa Sangpo. I'm from Sikkim, and my film was on Yak Horder, and I belong from Yak Horder community from Sikkim, and I'm also Green Hub Fellow. Same like Manas, but he's senior to me. And मैंने भी वो एक फिल्म बनाया था, जर्नी इनटू द हार्डेस्ट पैराडाइज। सो मैं और मेरा एक दोस्त मिलके हम दोनों ने बनाया था फिल्म, एंड फिल्म इज अबाउट याक हार्डर एंड वी मेड इट लाइक अ ट्रैवल वीडियो। सो अभी नेटवर्क शायद होप सो अभी अच्छा होगा, तो मे बी आई विल बी एबल टू जॉइन द डिस्कशन। हाँ, अभी आपकी आवाज क्लियरली आ रही है सांगपो। वीडियो थोड़ा फ्रोजन है, बट वी कैन हियर यू, सो या। ओके। Okay, so we continuing from where we left off. I think Vivek was talking about getting stuck in places, and I remember कि विवेक की अपनी खुद की एक कहानी है। जब वो ऊपर किसी मतलब माउंटेन्स में थे और उनकी he got stuck, and he's the real storyteller, so I will pass it on to him to tell us this story. मैं शॉर्टकट में बताऊंगा, क्योंकि यही कहानी में बार बार ऐसा लगता है दोहराते रहता हूँ, लेकिन मेरे लाइफ का अगर सबसे यादगार अगर एक्सपीरियंस रहा है वो ये शूट था जो गद्दी कम्युनिटी के साथ हिमाचल में बड़ा बंगाल गए थे हम, देवशीष और मैं, आई थिंक वो भी यहाँ पर होगा। तो मैंने हमेशा से सोचा था कि मैं बहुत फिजिकली फिट बंदा हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, खाता पीता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जहाँ पे हमको शूट करना था बड़ा बंगाल में, जाने के लिए करीब 1.5 से 2 दिन का रास्ता है पहाड़ों के बीच से।
और सामान लाद के जिस तरीके से हम पहुंचे, वहां पे जाना और वहां जाके फंस जाना, एक तो जाते जाते हमारी वैसे बत्ती लग गई, और वहां पहुंच के किसी भी तरीके से सामान के साथ, बड़े बड़े कैमरा इक्विपमेंट के साथ हम वहां पर पहुंचे हैं। और पहले दिन का जो दूसरा शॉट था, सुबह 7 बजे हमने शूट करना शुरू किया। वहीं पे गांव के करीब एक जगह है, अपना नदी है और एक छोटा सा पुल है। उस पुल के पास जो भी गद्दी आते हैं वो उस गांव में रात को रुकते हैं और फिर अपना जो भी सफर जारी रखते हैं। तो हमने सोचा चलो अभी जो भी आए हैं वहां पर एक बार शूट करेंगे। दूसरे शॉट के टाइम पे हमारा कैमरे की बत्ती गुल। अब मैं वैसी जगह पर देवशीष के साथ हम दोनों अटक गए हैं, फिल्म करना है, किसी तरीके से पहुंचे हैं, ना ही उस गांव में बिजली है और हमारा कैमरा काम नहीं कर रहा। अब करे तो करे क्या। तो मेरा दूसरा बैकअप कैमरा था छोटा सा, अब हमको पता है कि उसकी बैटरी भी इतनी बढ़िया नहीं है, तो वो जो भी 80 मिनट या जो भी 100 मिनट का हमारे पास टाइम है उसमें शूटिंग का, और कैमरा को चार्ज नहीं कर सकता, बैटरी चार्ज नहीं कर सकता। तो जो मेरे ख्याल में जो पुराने या बड़े लोग हैं हमसे, उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया होगा, जो फिल्म पे शूट करते हैं, उसी तरीके का एक्सपीरियंस हमने यहाँ पर डिजिटल के ऊपर कर लिया। जब हमको पता है कि अब इतनी सी बैटरी है और हमारे पास 4 या 5 दिन है, तुम क्या शूट करोगे क्या नहीं। और वो इतनी ज्यादा सुंदर जगह है कि एक बार वहां पर पहुंच गए तो अलग ही दुनिया दिखाई दे रही थी। और अब मुझको पता नहीं कि मैं ज्यादा कहीं जोश में आके उतना ओवर शूट ना कर लूं, लेकिन फिर अंडर शूट भी ना कर लूं। कल क्या होगा वो भी पता नहीं है। और वहीं पे जाके हम वहां पर फंस गए, लैंडस्लाइड्स वगैरह होने लग गई, बारिश आ गई, तो अब हम वापस घर नहीं जा सकते, फोन वगैरह काम नहीं करते। वहां पे एक सैटेलाइट फोन था, वहां से संजय को हमने फोन लगा के बताया कि भाई कुछ दिन और लगेंगे पर हम जिंदा है, सब फर्स्ट क्लास है। और फिर वहां पे ऊपर जब हम गए थे एक बार, तो वहां पर भी चोटी पर जाते हैं, वहां पर रहते हैं, गाँव नीचे की तरफ वैली में है। और जब हम ऊपर गए वहां पर शूट कर रहे थे, वहीं पर रात को जब सो रहे थे, भयंकर बारिश, और बाहर सारी भेड़ बकरियां जम के आवाज कर रही है। रात के करीब 2 बजे वहां पर बाद में सुबह पता चला हमको कि एक भालू आया था, और भालू ने एक बड़ा झपाटा मार के एक बकरे को, एक भेड़ू को मार दिया था। फिर इन्होंने उनको भगा दिया। और ये सारी चीजें मेरे एकदम बाजू में हो रही है, मुझको इसके बारे में पता भी नहीं। तो ये सारी इस किस्म के छोटी छोटी काफी चीजें थी जहाँ पे हम अटक गए थे और जो एक्सपीरियंस कर रहे थे। उसके बाद से मुझको याद है कहीं ना कहीं वापस मुझे जाना है और इनके साथ शूट करना है। और भले ही इतनी एक्सट्रीम सिचुएशन में मैं नहीं अटका हूं, और इसलिए मैं पूछ रहा था कि जब भी पैस्टलिस्ट के साथ काम कर रहे हैं तभी ऐसा कुछ होता है, तभी, क्योंकि आप वो एक्सट्रीम कंडीशन में रह रहे हैं और तुमको दिखाई देता है, तुमको महसूस होता है, और तुम वो शूट कर रहे हो और तुम खुद फंसते हो। तो जैसे मानस बता रहा था, उसी किस्म से मेरा भी फंसने वाला किस्सा है, और उसी किस्म से मेरे को पता है किसी और के पास भी कुछ होगा। मेरे ख्याल में एक छोटा सा किस्सा अगर कोई बता सके, उसके बाद फिर हम इस टॉपिक को बंद करके अगले पे जा सकते हैं। The thing that Vivek you're talking about with when the battery come hoti hai, that is something which I experienced when I was shooting in Nagaland. When we were shooting the film on Forest Rights Act, we were like a couple of young kids let loose कि जो shoot करना है करो. So we were shooting everything that we possibly could. There were 5 people shooting the same sunset. But then when we went to Fakim, this place doesn't get electricity for 4 months in the year. So in the beginning, we started shooting, and then suddenly all our batteries had drained out. The electricity didn't come for 2 days at a stretch, and we are finding everything. Like our stories have finally started happening, and we want to shoot, but nobody has any batteries. Nobody's camera works. Nothing. Then eventually we decided that now in this village, nobody has any vehicle. People just walk from one village to another. So then we found one bike, and we thought that me and the host who was hosting us, जिनके घर रह रहे थे, हमने एक बाइक कहीं से जुगाड़ लगाई, एक बाइक बोरो की कि पूरे गांव में एक बाइक है, हम वो बाइक लेके दूसरे गांव तक जाते हैं, collected everybody's batteries, and we set off early in the morning कि अब जाएंगे. And 5 minutes into it, बाइक की ब्रेक चली गई. So we almost we couldn't do anything. So हम बाइक को फिर धक्का मारते मारते, like ब्रेक लगी, दोनों बच गए, गिरे बट कुछ नहीं हुआ. Then बाइक को धक्का मार के गांव में वापस लेके आए, not knowing when we'll get our batteries back. And जब इलेक्ट्रिसिटी आती थी, वो आती थी कुछ
few hours के लिए. So then suddenly the next 30 days that we were there, we had to decide everything. ये shoot करे, नहीं करे. There's so many instances where there were such beautiful settings in the mountains and we wanted to shoot it, but you can't because डर लगता था कि अच्छा इसमें बैटरी वेस्ट कर लेंगे तो आगे जाके कुछ मिलेगा तो फिर हम कर नहीं पाएंगे. एंड देन यू थिंकिंग कि हम ये चीज वापस से शूट कर लेंगे पर वापस से वो होती ही नहीं है. सो देन यू आर लाइक अरे यार आई मिस दैट अपॉर्चुनिटी. सो दिस इज समथिंग दैट्स वेरी वेरी रिलेटेबल. I guess this is how it used to also be जब लोग फिल्म पे मतलब सेल्यूलॉइड पे शूट करते थे तब भी इतनी प्लानिंग करनी होती होगी. Okay, so I think we have time to talk about one more thing, and I would like to ask Sangpo a question actually, क्योंकि he's just joined the discussion. तो ये जब भी हम जाते हैं फील्ड पे तो एक तो हम लोग इस चीज की बात कर रहे थे कि you know how do you process the information that's thrown at you, but then there's also this that like how do you make people comfortable with the camera. So and that is of course one part of it, and I want to ask Sangpo especially because he went and shot a film in his own region. So it was like you were coming from there and then you were wearing this different hat of a filmmaker and going back there. So what was people's response like and how did you deal with that? Yeah. हाँ ठीक है. वो फर्स्ट में एक्चुअली या आई हैड प्रॉब्लम फर्स्ट में क्योंकि बनाने का कुछ और सोचा था और कुछ और बनाने के लिए सोच के हम लोग गया था. एंड लाइक व्हेन वी लाइक एंटर द विलेज एंड village like my village is like it's very remote, so वहाँ पर कैमरा like if people are carrying camera तो वो लोग सोचने लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का लोग है या तो कोई है, तो they think that like they gonna like I mean capture the something and they gonna like punish them type, you know. So they are like quite scared of this forest department and all. So वही था. So जब like after I was in this green hub, and after green hub I decided to go to my village and like make that film. एंड तब गया था तो लाइक इट वाज एक साल बाद था, तो एक साल जैसा के बाद में था. तो बिफोर व्हेन आई वाज इन माय विलेज हम तो वहीं पर था, तो आई वाज नॉट कैरिंग कैमरा, लाइक कैमरा वाज नॉट लाइक कैमरा वो सब ये नहीं था. तो जब एक साल के बाद आया तो कैमरा लेके गया. सो लोग देख रहा था कि आई वाज कैरिंग कैमरा एंड लाइक हम कुछ शूट करने से भी लाइक दे वर नॉट रिस्पॉन्डिंग टाइप, सो दे वर क्वाइट स्केर्ड. तो कंफर्टेबल करना तो बहुत प्रॉब्लम था. एंड वही कि गांव में तो थोड़ा हो सकता था, लेकिन जब ऊपर हर्ड में जाके वो लोग के साथ हर्डर्स लोग के साथ करना काफी मुश्किल था. क्योंकि वहाँ पर हर्डर्स मतलब 4-5 हर्डर्स था, बट हर्डर्स दे वर नॉट अलाउइंग टू शूट. सो ऐसे ही तो थोड़ा एक भैया था, उसके साथ हम थोड़ा बात किया. सो आई टोल्ड हिम लाइक इट्स नॉट समथिंग लाइक कुछ होने वाला नहीं है. सो जस्ट वी आर जस्ट मेकिंग सम वीडियो. I just want to show just want to show to my friends. So ऐसा करके हमने फर्स्ट में अप्रोच किया, क्योंकि डायरेक्ट हम कुछ फिल्म बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, हम ये फिल्म बना के सब दिखाएगा, ये सब ये करके हम नहीं कर सकता था. तो और बाकी हर्डर्स ने नहीं दिया, तो एक ही हर्डर्स को हमने वही हम मेरा दोस्त भी था. सो माय फ्रेंड वाज न्यू टू द प्लेस. सो वो फ्रेंड्स एक्चुअली फ्रेंड जो मेरा फ्रेंड था वो वीडियो करना चाहता है एंड ही वांट टू शो टू हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली, ऐसा करके. सो वी शॉट द फिल्म एंड लेटर वो फिल्म हो जाने के बाद लाइक मैंने वो फिल्म दिखाया था, वो लोग को भी दिखाया था. And at that time I said that it's like this and that, so they were quite happy. So
ठीक ही था। फर्स्ट अप्रोच तो मैंने अलग तरीके से किया था लाइक, बट जब लास्ट में मैंने बताया था कि आफ्टर फिल्म कंप्लीट होने के बाद मैंने फिल्म दिखाया था, एंड फिल्म भी लाइक मैंने बोला मतलब दिखाया, देन दे वर हैप्पी एंड दे वर स्माइलिंग एंड दे सेड दैट इट्स ओके टाइप, यू नो। सो ऐसा ही था वो एक्सपीरियंस। सांगपो, मुझको आपसे एक सवाल पूछना था। हाँ तो श्योर। आपने, मेरे ख्याल में आपने कहा था कि आप भी उसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो जो याक हर्डिंग कम्युनिटी है। तो उसके हिसाब से, क्योंकि मेरे ख्याल में बाकी सब जो है वो बाहर से फिर किसी और के पास जाके शूट कर रहे हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में वो चीज़ कैसी रही है? क्या वो चीज़ बहुत ज़्यादा आसान है क्योंकि आप भी वहीं के हो? मैं हरियाणा से हूँ, मैं अपने गांव में शूट कर रहा हूँ तो भाई चलो सब चंगा सी, वैसा वाला सीन था, या फिर कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं, क्योंकि वो पता नहीं कैसा एक्सपीरियंस रहा होगा मैं उनको समझाने के लिए भी। ओके, उस बारे में वही मैंने पहले बताया कि कैमरा से थोड़ा वो लोग डरता है, बिकॉज वो टाइम भी थोड़ा मतलब वहाँ पर ये लकड़ी काटना एंड ऑल दैट इज देयर। सो वो लोग आग जलाने के लिए लकड़ी काटता है, और some herders still like some herders they are like वो लोग hunting कर रहे हैं। सो इसी सो वीडियो करने के लिए और वीडियो करके उस वो लोग के सामने वीडियो करना जान पहचान होने से भी थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है, बिकॉज दे थिंक दैट हम कुछ करके मतलब कुछ बाहर दिखाने वाला है या वो लोग को पकड़ा लेगा ये सब। सो एंड हम लोग का जो या हर्डर्स रहता है वो दे आर वेरी क्लोज टू द नेपाल बॉर्डर्स। सो बॉर्डर में ही रहता है, तो बॉर्डर में आसपास होता है। सो बॉर्डर में नेपाल के साथ थोड़ा ट्रेड भी होता है, इट्स क्वाइट इलीगल ट्रेड ये सब भी होता है। सो इसीलिए अपना गांव होने से भी, अपना मतलब अपना जान पहचान होने से भी इट्स क्वाइट डिफिकल्ट शूट करने के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि भाई चलो तुम उसी कम्युनिटी से हो, मतलब सब आराम से हो जाएगा, उसमें अलग किस्म की फिर तकलीफें आएगी। हाँ वो अभी शायद जगह देख देख के होगा कि बाकी लोग के साथ ये सब नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो या खडर का वो है वो बहुत मतलब इंटीरियर में है। तो वो लोग बहुत इंटीरियर में है, तो कोई लोग नहीं आता है वहाँ पर, लाइक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये सब नहीं होता है। एंड इट्स क्लोज टू द नेपाल बॉर्डर। सो उसी के लिए ये लोग बहुत चीज कर रहा है, लाइक दे डू हंटिंग एंड दे कलेक्ट मेडिसिन लाइक मेडिसिन्स, एंड दे डू ट्रेड विथ नेपाल ऑल्सो। सो मेडिसिन का ट्रेड करता है, और इलीगल ट्रेड एक दो हो रहा है, इसीलिए इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। मे बी इफ इट वाज लाइक थोड़ा नीचे होता या ये सब नहीं हो रहा होता तो शायद हो सकता था। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी टाइम लगभग खत्म हो रहा है। हम एक आखिरी कोई अगर कुछ कहना चाहेगा कि अभी देखिए, अभी सब हमने, हर कोई एक दूसरे को नहीं जानता है, लेकिन हमें एक जो कॉमन थ्रेड रही है वो रही है कि चलो पैस्टलिस्ट के साथ हमने फिल्में बनाई है। तो एक आखिरी चीज कोई कुछ कहना चाहेगा इससे पहले कि हम इस चीज को खत्म करें आज के लिए? एक्सपीरियंस वाइज, या तो I would आगे like to जो, say something actually. या तो अपने एक्सपीरियंस के बारे में, या जो भी वैसा कुछ, या फिर अभी आगे किस तरफ जा रहा है, या वैसा कुछ फ्यूचर के बारे में। हाँ सांको बोलिए। Yeah, वही रिलेटेड टू पेस्टलिस्ट एक्चुअली वही है कि हम लोग ने जब हम लोग लाइक आई एम इंटरेस्टेड इन वाइल्ड लाइफ फिल्मिंग। सो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग इंटरेस्टेड तो वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकिंग में है। तो मेरा वही है कि लाइक जो हर्डर्स लोग है, लाइक एक्चुअली हर्ड तो लाइक कीपिंग like hurt was it's banned I think 2009 या 2006 में बैंड हुआ था। फिर अभी बैंड होके मतलब बहुत कम हो गया था। बट अभी क्या हो रहा है कि अभी नया गवर्नमेंट आया है, तो अगेन दे सेड दैट यू कैन कीप द हर्ट्स एंड लाइक सो हर्ट्स रखने से फिर अभी
I'm seeing like lots of people again they are going back and they are doing this herding thing, which is good, but वही है कि इसकी वजह से I think they are doing deforestation, बहुत deforestation हो रहा है, and hunting भी masses में हो रहा है अभी. So I see lots of animals like getting disappeared. So I'm quite worried about that, you know. So if anyone can like suggest me if I could do something related to that. Yeah, I want like herders to be there. I do belong from that, but I also want like them to like not to do the things like which is not good, you know. So I feel like herders, they are the part of that nature, and like so they should be the protector of that nature, you know. They should protect that nature instead of harming the nature. So maybe I think कुछ करके कुछ अवेयरनेस कर सकता है, या मे बी सम हैव एक्सपीरियंस कि ऐसा कुछ किया वो लोग ने कि कैसे कन्विंस कर सके. लाइक इन माय केस इज क्वाइट डिफिकल्ट, लाइक बहुत प्रॉब्लम हुआ कि आई ट्राइड माय बेस्ट टू डू, आई एम स्टिल डूइंग. सो इफ समवन हैव समथिंग कुछ सजेशन कर सकता है तो इट विल बी गुड. सांगपो के पॉइंट से सजेशन तो पता नहीं, अगर किसी के पास हो तो प्लीज रेज योर हैंड राइट नाउ. बट just going off of that, obviously everybody on this panel and everyone who's here today is passionate about pastoralism. पर मैं पूछना चाहती थी हमारी कम्युनिटी में हम कितना अवेयरनेस देख रहे हैं इसके बारे में, जो इश्यूज हम आज बात कर रहे हैं हमारे फ्रेंड्स में, इसके बारे में कितना अवेयरनेस है. मतलब आई एम नॉट अशेम्ड टू से मुझे पैस्टोरलिज्म के बारे में कुछ नहीं पता था जब तक मैंने ये फिल्म पे काम करना शुरू नहीं किया. तो ऐसे कितने लोग हैं हमारी कम्युनिटी में जिनको एक्चुअली as we go on, as we pass the baton on to the next generation, कितने लोग होंगे हमारी कम्युनिटी में जिनको इसके बारे में you know कुछ करना होगा. Sonakshi, you want to help me out? Yeah. You're on mute. Actually, जब मैं गई थी the first time, like within my friend circle, there were very few people. Even I didn't know much about pastoralism. It was more like the idea of going to an unknown place and getting to know the people of that place when I started out. And मेरे साथ मेरे first research trip पे मेरे friends आए थे, क्योंकि उनको भी like even though it was not part of their project and it was completely unrelated, they were very interested in the fact that we're getting to go to a new place, meeting new people, actually like involving ourselves in their culture. And we actually did a homestay also. Like हम कोई hotel में नहीं रह रहे थे. तो in terms of interest level, more than pastoralism, it was about that then. But I think there's a lot more awareness now. And like even when I started out this project, with my research, I realized that there are a lot of people doing a lot of things towards pastoral communities and for their produce. And so, yeah, I think that's great that there's so much happening. You Would see the anyone future is want to brighter add? for Ashwin? Yeah, when I started thinking about making this film, exactly, I think it was exactly a year ago. My entry point to the whole region that I was filming in was the leopards. So leopards से मेरे को I got to know the relationship between humanity and the wildlife. तब जाके पता चला कि रबाड़ी करके लोग हैं उधर रहते हैं. And that brought me back to all your film, my seniors at Srishti, all your Srishti films, shot in Touch and all these places. So then I started joining the dots, and now I think I have, after editing the film myself, I think I have a better understanding of pastoral communities in this environment. ठीक है. Akash, Simran, would you like to add? Yeah, I can add to that. Manas? I think in my third year, we made a film about camel milk, and that time in Gujarat, I think camel milk, there was not enough awareness about it.
So we had made the film with the local NGO about how to promote camel milk and how it has beneficial qualities to it. And like recently, I think I noticed that Amul had started producing camel milk chocolates and camel milk products. So that was quite a nice thing to see, because that's something that translated from the film to becoming a product which the NGOs were trying to promote at that point in 2013. So yeah, that was a good thing to see. When I first worked on with Pastoralist in Mandi, again, I had no idea apart from like the research that we'd done, because we were film students and we were going to that place that we were bound to. But over the course of the past few years, after being exposed to a lot of interesting films, I have, like, for example, something that's also on this festival, Shepherdess of the Glacier. I was so moved by that film that I made sure that when that a lot of other people watched. Like my parents, I made them watch it. I made my friends watch it. So people are definitely interested to know these stories, but it's because that we come from where we are that we've not been exposed to. So there's definitely, I still see a lot of merit in pursuing this, in out of interest, but also out of the richness of stories that you find there and how different they are from us. So that does build a lot of curiosity for the viewer. एज ए लोकल मैं बचपन से मतलब पेस्टोरल कम्युनिटी के साथ मतलब उन लोगों को जानता हूँ, ठीक है। बचपन से मैं उन लोगों के साथ रहा हूँ, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो अभी मुझे क्या लग रहा है कि ये जो सब्जेक्ट्स है ना, अभी अभी जो फिल्म्स बन रहे हैं इस पे, और जो मतलब स्टोरीज बाकी लिख रहे हैं लोग, बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं, फिल्म्स आ रहे हैं, तो उस चीज से शायद नए लोगों को, जिनका मतलब इस चीज के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, मतलब उनके मन में शायद थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, मतलब एक नए नए सिरे से आ रहा है शायद। तो पता नहीं, मतलब मैं तो नहीं बोल सकता हूँ कि क्योंकि हमारे वहाँ पे तो सब लोग जानते ही हैं ऐसे मतलब इस कम्युनिटी को, या रहते हैं हम लोग उन लोगों के साथ, तो वहाँ के लोगों का तो पता नहीं, लेकिन बाहर के लोगों का शायद ये फिल्म्स बहुत बहुत ज्यादा मतलब इफेक्ट ये कर रहे हैं, जो फिल्म्स को फॉलो करते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स को फॉलो करते हैं, उन लोगों का शायद एक इंटरेस्ट नए तरीके से आ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है शायद, पता नहीं अभी शायद वही हो सकता है, पता नहीं। आप लोग अगर कोई I agree with Manas कि शायद फिल्म बनाने से कोई भी चीज का हल तो नहीं निकल सकता या सॉल्यूशन तो नहीं निकल सकता, पर एक एंगेजमेंट के लिए it's a good medium, I feel, for people to begin an engagement with something, whether it's the audience that's viewing the films or if it's the filmmakers, young people like us going and making the films. So with that, I think we can come to the end of this discussion. Just quickly, in 2 minutes, if anybody from the audience has something to say, you can either put it in the chat box, or you can just unmute your mic and say it here. Any questions, comments, etc., and then we can wrap up. Okay, so thank you very much, everyone, for joining this discussion. Thank you to all of our panelists. Thank you for everyone who's been organizing Living Lightly. All the films of these panelists and lots of other films are available on our website, Moving Images, and we can in fact put it in the chat box right here just before ending the discussion. So please visit the website. The festival's on for another week till the 25th. All the films are there. And yeah, that's all. Thank you so much, everyone, for joining. Thank you, Satya, Vandana, Sanjay, Vivek, all the people who helped put this together. Thank you. Thank you, everybody. It was a lovely discussion. Wonderful.
As I was telling, it's very nice to hear stories from the heart and keep it non-academic, which is what is very refreshing about this. Thanks, and thank you, Satya, everybody else, the Shrishti Film team for organizing this wonderfully. Janvi, Harsimran, all our alumni, and the ones from other institutions also, Sonakshi and Sangpo. And so thanks so much. The closing note was actually supposed to be from Satya, not from me, but I did button. Bye-bye, everybody.